Okay, so today we are going to learn about parent and piecewise functions. So, an introduction to piecewise function. What is a piecewise function? A piecewise functions are just what they are named, pieces of different functions all on one graph. So we have the pieces of different functions and they're plotted on the one single graph. A piecewise function may follow one equation for certain values of x and then follow a different equation for other values of x. The absolute value function is a famous piecewise function. It has two pieces, a line with the positive slope and a line with the negative slope. So as you can see that this is a piecewise function and this is a fence. What is fence? Fence split the function into two neighbors. Split it, split into two neighbors. Okay. So now only one neighbor can own the fence. Therefore, this is close interval 0 to infinity, because close interval 0 to infinity means this can own the fence. So this is because the fence is owned by the close interval 0 to infinity. It means that this one will not own the fence. So it is negative infinity to 0, not included, because this side does not own the fence. So it's negative infinity to 0. So the piecewise function f of x is mod of x. If it is mod of x means it has positive as well as negative. It is positive when x belongs to closed interval 0 to infinity. It is negative when x belongs to minus infinity to 0. So let's come to the question number 1. Graph f of x is equal to minus 3 mod of x minus 2, and then rewrite the equation as a piecewise defined function. So on the domain of x 2 to infinity. So what is the fence? It is x minus 2. So it's going to be minus infinity to 2 open interval, 2 close interval to plus infinity. And this is minus 2. So we're going to move left 1 to 2 left. And this is 3. So 1, 2, 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1. So this is going to be the line like this. Okay. So now this side of this is minus infinity to 2, and this one side is 2 close interval to positive infinity. Now this is called y is equal to 3x minus 6, and this is equal to y is equal to minus 3x plus 6. So on the domain of positive 2 to infinity, we have y is equal to minus 3 x minus 2, and on the domain of minus infinity to 2, we have y is equal to minus 3 minus x minus 2. So we can write f of x is equal to minus 3x plus 6 for 2 to positive infinity, and 3x minus 6 for minus infinity to 2. So sometimes piecewise functions will be continuous, meaning you can draw the entire graph from left to right without lifting your pencil. Other times it will be discontinuous, means you have a hole or a gap somewhere in the domain. Consider the following graph. Now is h of x is a function. Now there are some questions according to the graph. Okay, so to define that if it is a function or not, we need to do the vertical line test. So this function passes vertical line test. So yes, it is a function because vertical line test passes. Okay. Next, is this function continuous? So if there is a gap between this function, so it means no, it is discontinuous. And at what point is it discontinuous? At point 1. It is a discontinuous function. Okay, so what is the domain of h of x? Domain is the values from x-axis minus 3 to 1, and 1 is included too, and it is moving on, so infinity. So it's going to be minus 3 to infinity. What is the range? Range is starting from 1 and 1 going towards upwards, so 1 to infinity. What is h1? Means y is 1, x is going to be, if y is 1, x is going to be 1. Write a piecewise equation for the graph of h of x. So h of x is equal to, because here it is 2
and when it is 2, it is 2 from -3 to 1, which is not included, and it is x means it is moving on like this from 1, which is included, to infinity, which is not included. So this is how we can write a piecewise function. We will first consider this part. This part is on the point 2, and 2 is from -3 to 1. Then we will consider this part. This part is from 1 to the positive infinity. Okay, identify all of the different pieces of the function below and write an equation for the graph. First of all, let us study that how many types of functions are here in this graph. Okay, so this is a parabola. This point is a second function, point y is equal to 6. That is called point. This is number 1. This is point. And this is the third one, that is line. Okay, so identify all three pieces of the function below. So we have identified the three pieces of the function below, and now we're going to write an equation for the graph. So let's say y is equal to, we will write the equation. The equation of the parabola is x square, y is equal to x square, and x square is starting from going towards, because there is arrow, so it's minus infinity, and here it is 2, which is not included. So we will write minus infinity to 2, which is not included. The next function is a point, y is equal to 6. So next is 6, and 6 is the point at x is equal to 2. 4x is equal to 2. The third one is this line. This line is 10 minus 6, 4. This line is starting from 2, which is not included, and ending on 6, which is included. So 2 to 6. So we can say that y is equal to, this is the function for y. So I hope you can understand that how to write the piecewise function. Write the equation for the following piecewise defined function. So very easy to write the equation for the piecewise function. Let's say this is a line. Okay, so first of all, we are going to write the equation of the line. Number 1 is line, and what is the equation of the line? Okay, equation of the line is going in the negative, downwards towards the negative side, so it's y is equal to -6. The second function is this one, and this is a constant function, and it is constant at y is equal to -2. The third function is this one, and we know this is the graph of the square root function, so this is a square root function, and the equation will be y is x minus 2. Okay, so now writing the equation of this function, f of x or y, we can write it f of x or y is equal to, first of all, we have a straight line, y is equal to -x, so it would be equal to -x, and -x is from minus infinity to -1. Then we have -2, which is 4, -1 to 2, and then we have square root function x minus 2, which is 4, 2 to infinity. Now I'm going to tell you about all these three. We have -6, and it is going from towards minus infinity and towards minus infinity, starting from 1, -1, sorry, -1. The second is -2. -2 is starting from -1, which is not included because there is a hole, and 2, which is included. X minus 2 square root, it is starting from 2, which is not included, and going towards positive infinity. Okay, the following piecewise function is called the step function because there are steps 1, 2, 3 steps. So this is called a step function. So write the equation for this step function. So very easy, very easy. F of x is equal to, okay, I must don't forget to subscribe my channel because मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें. मैं अपनी पिछली वीडियोस में ये बात कहना भूल जाती हूँ, और उसको जो है ना लाइक भी लाजमी कर दिया करें ताकि थोड़ी मोटिवेशन रहे. ठीक है, अच्छा. सो वी हैव this is starting from -5 and ending on -2. So the first one is
और ये है किस पे, इट इज़ -3 पे, y -3 है। तो हमने ये जो y वाली एक्सिस पे जो होगा ना वो हमने यहाँ पे लिखना है -3, और जो हम 4 लिखेंगे डेट विल बी द डोमेन -5 से -2, -5 से, और -2 पे होल है तो -2 इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट वन हमारा ये वाला जो है ये 0 के ऊपर है। 4 ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -2 से, और 1 के ऊपर 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज 1 पे होल है। और ये वाला हमारा 3 के ऊपर है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा 1 से, और ये 4 है जो कि इंक्लूडेड नहीं है। तो डोमेन इसकी ओवरऑल क्या बनती है हमारी, ये सारी हमारी डोमेन होगी -5 से लेके, बिकॉज यहाँ पे -2 के ऊपर एक हमारे पास कलर्ड है and 1 is the whole one, so we will consider the color one, so it's included. So 1 is also included and 4 is not included, so it's going to be 4 not included, -5 included. What is the range? It is starting from -3 and going to +3, so range is -3, then it's going to be 0, and then it's going to be +3. Okay, what is f of 1? F of 1 means the value of y is 1, so y is 1. Not y is 1, sorry, f of x होता है, so it's x is 1, so it's x is 1, so at 1 the value is 3. F of -1, so x is -1, at -1 the value is, there is no value of the graph, so it's 0. So is f of x even, odd, or neither? So how we are going to check if it is even, odd, or neither? We are going to justify that if it is even, then f of negative of x is equal to f of x. So f of -1 is equal to 0. F of +1 is equal to 3. So it means it is not even, because f of -1 अगर 1 आता, because f of x आता, so ये 1 होता, so not even. अब if odd, अगर odd होगा तो क्या होगा, f of -x is equal to minus f of x होगा. So f of -1 0 है, माइनस f of 1 -3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. सो नॉट ऑड, इट मीन्स ये क्या है, इवन है, ऑड है, या नाइदर है, सो इट्स गोइंग टू बी नाइदर. A doctor's fee is based on the length of the time he spends with the patient. ठीक है, एक डॉक्टर की फीस बेस करती है कि वो कितना टाइम पेशेंट के साथ स्पेंड करता है. फॉर अप टू 6 minutes द फीस $50. For 6 to 15 minutes it's $80, and for 15 minutes it's going to be $80 plus in addition of $5 per minute, about 15 minutes. Sketch the graph to model this situation. Time in minutes, and fee is taken in dollars. So we have 6 minutes and 15 minutes, and then moving on, and the fees is starting from 50, so it can be 20, 40, 60, 80, 100, like this. So about, for up to 6 minutes the fee is 50. So if it is 6 minutes the fee is 50 for up to 6 minutes. From 6 to 15 minutes, if 6 and 15 minutes, then it is 80. From 6 colored one to 15 minutes, it's going to be colored one 80, and after 80 there will be a plus, so we will do like this because it will keep on increasing as the minutes increases. Write a piecewise equation for t belongs to 0 to 18. So f of t is equal to 50 minutes for 0 not included, 6 not included, $80 for 6 included, 15 minutes included, and 80 plus 5 t minus 15, because $5 per minute above 15 minutes, because total time में से we are going to subtract 15, so
multiply by 5, we will get 4, 15 to 18. So this will be the equation. If you were there for 12 minutes, like I have 12 minutes you will be there, what will be the fees? So the fees is going to be, for 6 to 15 minutes the fees is 80, so 12-minute fees would be $80. If you were there for 20 minutes, so what will be the fees? Over 15 minutes he charge a flat fee of $80 plus an addition $80. Okay, for 15 minutes it was $80 and plus an addition of $5 per minute above 15 minutes. So how many minutes it were added? 5 minutes were added. And yes, 5 minutes were added, so 5 times he will charge $5 for 1 minute, so it would be 25. So we will add 8, 10, so $105. Graph the following functions and state all our domain and range for the function. So very easy, that we're going to just graph the functions and state the domain and the range. So first of all, we know that okay, x less than 1 and greater than equal to 1, so it means we're going to fence at x is equal to 1, and this is less than 1, so it does not on fence, and it does on fence, it ons fence. Okay, so it's going to be, first of all we're going to make fence and x is equal to 1. Now we know that x is less than 1, x plus 2, this is not going to on the fence, x plus 2 is not going to on the fence, so we are going to make the table. X plus 2. Okay, so if x is 1, 1 plus 2, if x is 1, 1 plus 2, 3, if x is 2, 2 plus 2, 4, if x is negative 1, negative 1 plus 2, positive 1, negative 2, 0, negative 3, plus 1 plus 2, negative 1. So it's 1, 1, 2, 3, 2, 4, negative 1, 1, negative 2, 0, negative 3, negative 1. So this is how the line is coming, and because they say that x should be less than 1, so I have taken greater than 1 too, so this number is not included. I should not take this number because x should be less than 1, so this would not be included because there is fence set over here, and fence this number is not included because this is less than 1. तो हम यहाँ पे होल बनाएंगे, दिस वॉन्ट बी कलर्ड, कलर्ड नहीं होगा. ओके, द अदर फंक्शन इज़ x माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो इसका भी हम एक ग्राफ बना लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो कि y होता है. सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एट x इज़ इक्वल टू 1, 1 minus 1, 0, at x is equal to 2, 2 minus 1, 1, at x is equal to 3, 3 minus 1, 2 का square 4. Okay, so 1, 0, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4. So it's going to be go like this. Okay, so as we can see, the domain is minus infinity से plus infinity, and the range is again minus infinity से plus infinity. इसी तरह we are going to do all of these questions, but I am going to do it for you. For p of x is equal to this very long thing. Okay,
ओके, इन दिस -1 इसमें इंक्लूडेड है और इसमें -1 इंक्लूडेड नहीं है, सो इट मीन्स फेंस विल बी -1 पे होगी और ये ऑन करेगा फेंस को, ये ऑन करेगा फेंस को। सो हम -1 पे पहले फेंस बना लेते हैं। अब क्योंकि हमने फेंस बना ली है, सो वी नीड टू नो द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, and what is y? Y is equal to 2 square root of x plus 5 minus 4. So let's solve it. अगर x minus 5 होगा तो it would be 0, अगर x minus 4 होगा तो it would be -2, x minus 1 होगा तो it would be 0. So x minus 2 3 4 5 होगा तो 0, -4 होगा तो -2, -1 होगा तो 0 again. There is some mistakes. -5 or -5 plus 5 0 0 0 0 -4. So it should be -4. If x is -5, -4, -4, -2, -1 0. So the graph is going in this way like this. Okay, so the graph of the other one is x minus 1 modulus. So -1 -1 -1 -2, and because of the modulus it will become +2. 0 0 -1 कॉल ऑफ द मॉड्यूलस, इट विल मॉड्यूलस जो है वो हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। फिर हम 1 लगाएंगे, 1 -1 0 आ जाएगा, 2 लगाएंगे, 2 -1 1 आ जाएगा, 3 लगाएंगे, 3 -1 2 आ जाएगा। तो अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। -1 1 -1 1 2, 0 में 1 आएगा, 1 में 0, 2 में 1, 3 में 2। तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ वी की शेप में बनेगा। जब भी आप मॉड्यूलस का ग्राफ बनाओगे आपको वी की शेप में ग्राफ मिलेगा। तो अब बताओ कि इसकी डोमेन क्या है। सो व्हाट इज़ द डोमेन? सो डोमेन इज़ ओके, सो डोमेन इसकी यहाँ -5 से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। -5 इज़ इंक्लूडेड एंड रेंज इज़ फ्रॉम -4 एंड गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, अब सी पार्ट में क्या होगा? सी पार्ट में देर आर ग्राफ्स -2 x + 2। अब हम सबसे पहले देखते हैं फेंस कहाँ पे आ रही है। -4 इंक्लूडेड है, -4 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। सो दिस इज़ दिस ऑन्स -4। ये -4 को ऑन करता है, ये 1 को ऑन करता है और ये दोनों में से किसी को ऑन नहीं करता। तो फेंस हमारी आ जाएगी -4 पे और 1 पे। 1 2 3 4, ये हमारी -4 पे आ गई फेंस और ये 1 को ऑन कर रहे हैं तो 1 पे आ गई फेंस। तो सबसे पहले हमने फेंस बना ली। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब ये कह रहे हैं S <= यानी कि -4 से कम होगा तो इसकी वैल्यू -2 रहेगी। यानी कि ये जब -4 से कम, ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट -4 से कम है। दिस वन पार्ट, दिस होल पार्ट इज़ <= -4।
बट दे आर सेइंग कि जब व्हेन इट इज़ लेस देन -4 इट्स वैल्यू वुड बी -2, सो इट इज़ -2, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस -2। सेकंड में वो कह रहा है व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन -4, यानी कि ये -4 से भरा, और लेस देन इक्वल टू 1 इसके, यानी कि ये इस फेंस के दरमियान में होगा, ये वाला पोर्शन जब होगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू, तो वैल्यू होगी x+2। अब x+2 का हम ग्राफ बना लेंगे, x+2 विच इज़ इक्वल टू y। सो अब हम देखते हैं कि x+2 पे क्या वैल्यू आती है। तो अगर हम -4 रखते हैं, -4 + 2 विल बी 2, -4 -3 + 2 is equal to -1, -4 + 2 is equal to -2, -1, -2 + 2 is equal to 0, -1 + 2 is equal to 1, 0 + 2 is equal to 2, 1 + 2 is equal to 3, -4 -2, -3 -1, -2 0, 0 + 2, no, it's going to be 0 + 2, it's, there's some mistake, -1 + 1, -2 0, 1 3, so it is going to go over here। थर्ड वन है -x - 1 का होल स्क्वायर +2, और ये तब होगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 है इस साइड पे, ये पूरी साइड ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें देखते हैं कि ग्राफ की क्या सिचुएशन आएगी। लेट्स सी। सो हियर इट इज़ x y, ये जो हमारा पूरा पोर्शन है इसका नाम हमारा है y इज इक्वल टू दिस। ओके, तो लेट्स से जब हमारा x 1 होगा, बिकॉज इट्स सिचुएशन के ये 1 से सिचुएशन ये है कि ग्रेटर देन 1, तो हम 1 नहीं लेंगे, हम 2 ले लेते हैं। 2 - 1, 2 - 1, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 + 2 + 1, 3 ले लेते हैं। ओके, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, -4 + 2 -2, सो 2 होगा तो 1 होगा, 1 2 होगा तो 1 होगा, 3 होगा तो -2 होगा, तो 1 2 -2 होगा, यानी कि द ग्राफ इज़ गोइंग टू, अगर फॉर एग्जांपल 1 होता है, मे बी इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, बट 1 होता है तो 1 - 1 0 हो जाता है, तो +2 होगा। 1 होगा तो 1 2 होगा, लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं होगा, तो हम इस पर होल बना देंगे। सो इस तरह से हमारा ग्राफ बने। तो व्हेन हमारे पास 3 फंक्शंस होंगे तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि इक्वालिटी जहाँ पे आएगी वहाँ फेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, -4 इक्वालिटी है तो -4 पे फेंस होगा, और +1 पे इक्वालिटी है तो +1 पे। तो हमारे 2 फेंस आ गए। अब जब 2 फेंस आ जाएंगे तो उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कह रही है x लेस दैन इक्वल टू -4, तो -4 की जो ये वाली साइड है ये सारी ऑन करेगी, और इस पर फंक्शन की वैल्यू -2 है, तो -2 पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये हमारा काम हो गया। फिर नेक्स्ट के ऊपर वो कह रहे हैं कि x -4 से +1 के दरमियानी, यानी कि इन बिटवीन फेंसेस ये वाला x+2 ऑन करेगा, तो x+2 की जो वैल्यूज़ हैं वो इन बिटवीन द फेंसेस आ गई। फिर ग्रेटर देन 1 ऑन करेगा, तो ग्रेटर देन 1 में ये वाली पोर्शन आएगा, और इस पोर्शन की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। एंड हमारे ग्राफ की जो डोमेन है वो है -∞ टू +∞, और जो रेंज है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैक्सिमम 3 पे जा रहा है, और 3 से ऊपर ये मैक्सिमम 1 2 3 +3 पे जा रहा है। नीचे एरो है तो नीचे चलता ही जा रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी -∞ टू +3 विच इज़ इंक्लूडेड। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब इस फंक्शन की हमने इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन क्या है।
Okay, now you will need to use the graph to answer the following questions. This is the line and this is the parabola. This is the square root. F of minus 2 means f of minus टू मीन्स x, तो x माइनस 1 माइनस 2 होगा तो ग्राफ यहाँ पे माइनस 5 है. f ऑफ माइनस 1 होगा तो ग्राफ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट. एनी मैक्सिमा, तो इसका जो रियल मैक्सिमा है वो ये है और ये है 0 2 पे. और एनी मिनिमा, और जो इसका मिनिमा है वो ये है और ये है 2 माइनस 6 पे. अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस है नहीं क्योंकि यहाँ ब्रेक आ रही है तो नो नॉट कॉन्टीन्यूस. डोमेन क्या एफ ऑफ एक्स की, डोमेन है इसकी माइनस इन्फिनिटी से और ब्रेक कहाँ पे आई है इसकी -2 पे. -2 is included but then there is a gap union -1 which is not included towards plus infinity. रेंज क्या है वो यहाँ -6 से ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी. उसके बाद एफ ऑफ एस इंक्रीजिंग किस साइड पे है, ये तो डिक्रीजिंग है ना, यहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है. ये था -1 विच इज़ नॉट इंक्लूडेड टू 0 नॉट इंक्लूडेड यूनियन. ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इट्स इंक्रीजिंग. ओके, व्हाट इज़ डिक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन डिक्रीजिंग 0 से ये वाला पार्ट डिक्रीज कर रहा है सो इट्स 2, 0 से 2. और एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है नो, सो राइट द इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. द लास्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू. ओके क्लास, सो जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है ना वो है राइट द इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. ये थोड़ा सा जो है ना लंबा और थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. इसमें सबसे पहले वी आर लुकिंग, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जगह होगी तो हम लिखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है लाइन की इक्वेशन. तो लाइन की इक्वेशन के ऊपर वी नो कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के, जिसमें से m जो होता है वो हमारी स्लोप होती है. बट नाउ वी डोंट नो कि हमारी इस लाइन के इक्वेशन की स्लोप क्या है. तो हम कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे, एक पॉइंट ये ले लिया है मैंने और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया है. सो हमें पता है कि m फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. तो अब हम किस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, y2 क्या है -2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -4 plus 8. So it's going to be -6/4 which is equal to -2 3s are 6 and 2 2s are 4. So m हमारे पास m is equal to -3/2 इस तरह से निकल आया. नाउ हमें k नहीं पता तो हमें ये पता चल गया y is equal to -3/2x plus k. अब हम कोई एक पॉइंट पुट करके फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक -8 4 हम ले लेंगे और हम k फाइंड कर लेंगे. 2 1s are 2 2 4s are 8 4 is equal to plus 4 3s are 12 is equal to k. 4 minus 12 is equal to k and k is equal to -8. तो अब जो हमारी लाइन की इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये होता है m क्या है -3/2 x प्लस k क्या है -8. और ये किस डोमेन के लिए है, फॉर x इज लेस देन इक्वल टू -2 क्योंकि हमें पता है यहाँ -2 से लेस देन इक्वल ये वाली लाइन जा रही है. सो इट्स फॉर x लेस देन इक्वल टू -2. अब जो हमारी सेकेंड वन है वो है ये पैराबोला जो हमारा बन रहा है. सो यू गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन फॉर द पैराबोला. सो अब नाउ टेल मी दैट हाउ टू फाइंड द इक्वेशन फॉर द पैराबोला. वी हैव y इज इक्वल टू a x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k. और हमें पता है h और k क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं. तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है 0 और 2. तो हम इसको पुट कर देंगे y इज इक्वल टू a
x minus 0 का होल स्क्वायर प्लस 2. सो इट्स गोइंग टू बी y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 2. अब हमें a नहीं पता क्या होता है, तो हम इस पैराबोला पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे. फॉर एग्जांपल हमने ये पॉइंट ले लिया, सो इट इज़ 1 0. 1 0 हमने एक पॉइंट ले लिया. अब हम इसको पुट करेंगे 1 0. 0 इज इक्वल टू a 1 प्लस 2. सो माइनस 2 इज इक्वल टू a. सो a की वैल्यू -2 आ गई. इसको हम अपनी इक्वेशन में बैक पुट करेंगे. सो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ आवर पैराबोला. y इज इक्वल टू -2. x माइनस 0 का होल स्क्वायर था, तो वो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2. सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -2 x स्क्वायर प्लस 2. और इसमें हमारे पास ये स्टार्ट हो रही है -1 से और जा रही है प्लस 2 इंक्लूडेड. सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 2 फॉर x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू -2. अच्छा, लास्ट वन जो है वो हमारी ये है स्क्वायर रूट फंक्शन. सो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट फंक्शन और इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में वी डू लर्न कि स्क्वायर रूट फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है. सो ये होती है y इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एच प्लस के. सो x माइनस एच प्लस के, एच और के इसका हमारा होता है वर्टेक्स या स्टार्टिंग पॉइंट. तो दिस इज दिस plus 2 and -6. 2 and -6. So it's going to be 2 and -6. Y is equal to a x minus 2 -6. So अब हम a फाइंड करेंगे. अब स्क्वायर रूट फंक्शन हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे. लेट्स से हमने ये पॉइंट ले लिया. इस पॉइंट पे x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है -4. 6 और -4 हमने एक पॉइंट ले लिया. 6 और -4. -4 इज इक्वल टू a 6 minus 2. 6 minus 2 4. 4 का स्क्वायर 2. a इज इक्वल टू 1 आ गया. तो इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू x minus 2 -6. तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये जा रही है +2 से इन्फिनिटी तक, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए. सो द इक्वेशन इज x minus 2 -6 4 x इज़ ग्रेटर देन 2. सो इस तरह से जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी तो उसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस किए थे. स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, इक्वेशंस लिखी थी. तो हम ग्राफ में जो 2 या 3, क्योंकि व्हाट इज़ द पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इन वन ग्राफ. तो उन सब ग्राफ्स का जो फंक्शन का कम्बिनेशन है वो यहाँ पे लिखा गया. हम उसको फाइंड करते जाएंगे. वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है. ग्राफ द फॉलोइंग पीसवाइज फंक्शंस एंड state the overall domain and range. तो हमने अब ये functions हमें given है, we're just going to graph these functions and we're going to state the domain and range for these functions. So it's not going to be difficult because we're just going to take 1 or 2 or 3 points. So for example the first one is 2x plus 3 और इसमें point हमने x से less than equal to 1 ले लेंगे, यानी कि x is less than equal to 1 वाले points we're going to take. So x y which is equal to 2x plus 3 and the points we're going to take is less than 1. सो लेस देन 1 में हम सबसे पहले 1 ले लेते हैं. 1 इज़ 2 1 था 2 प्लस 3 5. फिर 1 लेस 1 से कम 0 हो जाता है, 3 आ जाएगा. फिर -1 हो जाता है, -2 प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा. -2 पे -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा. इसी तरह दूसरे का भी साथ ही लिख लेते हैं, जो हमारा है x और y इज इक्वल टू 3 -6. 3 -6 है. अच्छा, तो इसमें हम लोगों का जो है वो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो या उससे भरा हो. तो 1 के लिए 3 -1 2 हो जाएगा. 2 के लिए 3 -2 1 हो जाएगा और 3 के लिए 3 -3 0 हो जाएगा. तो वो कह रहे हैं
लेस देन इक्वल टू 3 हो तो बस ये पॉइंट्स हम ले सकते हैं। अब क्योंकि पॉइंट्स हमें मिल गए हैं तो वी कैन जस्ट इजीली प्लॉट देम। तो इट्स वाज 1503 1 1 2 3 4 5 0 3 -1 -1 1 -1 1 -2 -1, and the first point was not included. Okay, and on the other side it was 1 2 2 1 3 0 1 2 2 1 3 0. This was, and what is the fence? क्योंकि ये less than 1 और less than equal to 1 है, so it ons the fence, ons fence, fence ये on करेगा और 1 के ऊपर fence बनेगी। सो ये हो गया। अब हम डोमेन इसकी लिख देंगे, हमें पता है इसकी डोमेन है -∞ से यहाँ 3 तक, और रेंज इसकी क्या है, नीचे से जा रही है ऊपर से -5 -∞ ये 5 है, और 5 पे होलो सर्कल, इट मीन्स इट्स नॉट इंक्लूडेड। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ। सबसे पहले देखते हैं फेंस कहाँ आएगी। यहाँ x लेस देन 0 है, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, सो फेंस इज गोइंग टू कम एट 0। ओके, x इक्वल टू 0 पे +5 है, इसका मतलब जब 5 पॉइंट है द पॉइंट 5 इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं जो कि इंक्लूडेड x, ये हो गया। अब x लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये है, तो इसको हम बना लेते हैं x y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 प्लस x। तो इसके कोई से 2 से 3 पॉइंट्स हम विल फाइंड हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ -3 4 -3 1, -4 पे 0 आ जाएगा, और 0 पे 4 + 0 4 2 आ जाएगा। बट 0 वॉन्ट बी इंक्लूडेड, सो 0 पे 2 होगा बट इट्स वॉन्ट बी इंक्लूडेड। ठीक है, -4 पे 0 और -3 पे 1। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन डिफरेंट है, x 4 - 6 विच इज़ इक्वल टू y। ग्रेटर देन 0 की वैल्यूज हम लेंगे, सो लेट्स टेक 2 4 - 2 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। लेट्स टेक समथिंग 4 4 - 4 इज़ 0, एंड 3 4 - 3 इज़ 1, सो 4 और 0 3 और 1, सो ये इस तरह से सो ग्राफ बन गया हमारा। एंड डोमेन इसकी कहाँ से कहाँ चल रही है, -4 से 4 के दरमियान, विच आर इंक्लूडेड, और रेंज भी इसकी साफ पता चल रही है, डेट इज़ फ्रॉम 0 to 2 एंड 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड। यूनियन एक ये वाला पॉइंट भी था, ये भी रेंज में इंक्लूड होगा, y इज इक्वल टू 5। कितना ईजी हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, अब इसमें देखो फेंस कहाँ बनेगी। x लेस देन इक्वल टू -1 है, x ग्रेटर देन -1 है, यहाँ -1 ऑन करेगा, यहाँ ऑन नहीं करेगा, तो एक फेंस तो हमारी बनेगी -1 पे, और जो +2 है यहाँ ये वो भी ऑन करेगा, तो दूसरी फेंस वी आर गोइंग टू ड्रॉ ऑन +2, 2 फेंस बन गई अब हमारी। 3 हमारे फंक्शंस हैं। अब पहला फंक्शन जो है डेट इज़ -2/3x + 4। So you can imagine that we can just do it like this, x y, यहाँ पे y इक्वल है -2/3x + 4। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें x लेस देन इक्वल टू -1 हो सकता है, यानी कि -1 हम ले सकते हैं। तो -1 जब हम लेंगे तो आंसर वी आर गोइंग टू गेट इट -1 + 4 इज गोइंग टू बी +3, 3 3 से कैंसिल, तो -2 आ जाएगा।
-4 हम लेंगे तो we're going to get 0, -7 हम लेंगे तो we're going to get -7, 4, 5, 6, 7, 3, 3, -2 again. So -1 we're going to get -1 पे we're going to get -2, -4 पे 0 and -7 पे -2. अच्छा, the next one is 3x square minus 8. 3x square minus 8. अच्छा, for 3x square minus 8 the condition is कि x -1 से ग्रेटर होना चाहिए. हम -1 ले लेते हैं और लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए. तो अगर -1 लेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 3 -8 -5. then if we're going to take 0 -8, then 1 -5 again, then 2 4. so -1 पे -5 होगा जो कि इंक्लूडेड नहीं है, 0 पे 8 होगा जो कि इंक्लूडेड है, 1 पे -5 होगा, 2 पे 4 होगा. ओके, द लास्ट वन इज x 4 से ग्रेटर होना चाहिए. यानी कि 5 कर लो, 4 कर लो. सबसे पहले 4 करेंगे तो 2 2 सा 4, -2 + 4 2 हो जाएगा. ठीक है, और फिर 6 कर लेते हैं. 6 पे 1 हो जाएगा. 4 2 which is not included, 6 पे 1 which is included. तो ये इस तरह से मूव करेगा. सो वी हैव डन विद द ग्राफ. डोमेन हमारी देखो जनाब कहाँ से कहाँ जा रही है. द डोमेन इज़ गोइंग फ्रॉम -∞ कहीं +2 पे जाके ब्रेक देती है which is included. Then union, it is going from 4 which is not included towards +∞. Range is going from -∞ to +4. Okay, so the next is write the equation for each of the following piecewise function. अब हमें भी पता है that this one is the cubic function, this one is a straight line graph, and this is constant. This point is 1 2 3, y is equal to 3, and this is a constant at y is equal to -2. ओके, तो ये दो तो हो गए. मेन मसला हमारा आ रहा है क्यूबिक फंक्शन का. क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ क्या, जो क्यूबिक फंक्शन का हमारा होता है equation. What is the equation for the cubic function? So in the first exercise we have learnt about the equations. So equation of the cubic function is y is equal to a x minus h whole cube प्लस के. और ये जो एच के होता था ये सेंटर होता था. तो क्यूबिक फंक्शन में यहाँ सेंटर है -1 -2 -3 और 1. -3 1 is the center. So it's going to be y is equal to a x plus 3 का whole cube -3 1 प्लस 1. ये सेंटर आ गया. अब ए फाइंड आउट करने के लिए हम कोई और एक और पॉइंट ले लेंगे. फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं -1 -2 और वाई एक्सिस से 1 है, -2 1. सो क्या हो जाएगा -2. 1 का क्यूब 1 है, प्लस 1 1 -1 but it should not come 0. It should be ओके दिस ये पॉइंट हमने गलत लिया. -3 -1 है ये पॉइंट. सो ये -1 होगा पॉइंट. तो ये थोड़ी सी हमारी यहाँ पे मिस्टेक है. इट वुड बी -1 ओवर हियर, इट बी +1. सो अगर हमारी कोई ऐसी मिस्टेक हो भी जाए तो वो पकड़ी जाती है. तो क्या होगा, y इज़ इक्वल टू 2 x + 3 का होल क्यूब -1.
ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक फंक्शन आ गई है। तो हम यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स अपना लिखते हैं, चलो एफ ऑफ एक्स बाद में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगी ये भी हम निकाल लेते हैं। गोइंग टू यूज़ अनदर कलर। लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y इंटरसेप्ट इसका किस पॉइंट पे आ रहा है, absolute value function a x minus h plus k. So this is the absolute value function because it is starting and stopping at specific points. So it's absolute value function. अच्छा, इसका ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है डेट इज़ +2 and 2, -2 and +2, -2 and +2, y is equal to a x -2 and +2। अब a फाइंड करने के लिए कोई एक पॉइंट हम ले लेंगे। कोई एक पॉइंट हमने फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट है +1 और 6, 1 और 6 है। तो 6 इज इक्वल टू a, 1 + 2 + 2, 6 - 2 इज इक्वल टू a, 3, 4/3 इज इक्वल टू a। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू 4/3 x + 2 + 2। तो अब मैं यहाँ पे अपना एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिखने लगी हूँ। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इक्वेशन थी हमारी 2x + 3 का होल क्यूब -1, और इसकी जो डोमेन थी डेट इज़ -∞ to -2 इंक्लूडेड। सेकेंड फंक्शन थी 4/3 mod of x + 2 + 2, और ये था -2 से 1 ओपन इंटरवल। फिर एक पॉइंट था 3 जो कि है x इज इक्वल टू 1 पे, और एक कांस्टेंट फंक्शन है -2 जो है 1 से 6 के दरमियान। ओके, इसी तरह वी गोइंग टू फाइंड दिस फंक्शन पार्ट बी। इसमें अगेन वी हैव अ मॉड्यूलस फंक्शन y इज इक्वल टू a x माइनस h प्लस k। ओके, सो ये जो हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन है इसमें h और k क्या होंगे? 1 2 3 -3 और 0। So we can write y is equal to a x प्लस 3 और +0 हो गया। ठीक है, अब a फाइंड करने के लिए एक पॉइंट ये ले लेते हैं डेट इज़ 1 2 3 0 एंड 3। सो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a, 0 + 3, 3 इज इक्वल टू a 3। सो 3/3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू x + 3, जो कि इस फंक्शन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू x + 3। ठीक है, अब ये वाला हमारा ग्राफ कौन सा ग्राफ है? सबसे पहले यू शुड नो कि ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ शो कर रहा है। Just think for a moment at which type of graph is this.
दिस इज़ वन ग्राफ, दिस ये जो रेड वाला मैंने प्लॉट किया है। तो अब हम इसको देखने लगेंगे ये कौन से वाला ग्राफ है। द गोइंग फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड इन अ कर्व्ड वे। Like this, so it seems to be quadratic function graph. ओके, सो इसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, जिसमें एच और के वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, +2 और -5। सो y इज इक्वल टू ए एक्स एट के is the vertex and vertex over here is 2 and -5. Okay. Now we are going to find A. A को find करने के लिए we will take any one point of the graph. So let's suppose हमने ये point ले लिया। ये point क्या है, 1 2 3 and 4। 1 तो 9 आ गया। So it can be written as y is equal to 9 x minus 2 का whole square -5. Let me think, it's -5. The point is wrong, 3 or -4 वही I'm thinking it should be -4, -4 plus 5 would be +1, so it should be +1 over here. Okay, the last graph जो है वो ये वाला है, ये वाला ग्राफ जो मैं ग्रीन से कर रही हूँ। तो ये वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है, दिस इज समथिंग आई थिंक ओके, दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन। सो स्क्वायर रूट फंक्शन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच प्लस के, और एच और के वर्टेक्स होते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वर्टेक्स इज 5 and 4। सो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 5 प्लस 4। एंड अब ए फाइंड करने के लिए वी आर गोइंग टू डू इज एक पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ये ले लिया 6 और 3, तो इट्स गोइंग टू बी 3 इज इक्वल टू ए 6 minus 5 plus 4, 3 is equal to a 6 minus 5 1 plus 4, 3 minus 4 is equal to a is equal to -1. So जब हम इस पॉइंट को लिखेंगे तो y is equal to -1 x minus 5 plus 4. सो अब हम जब अपना फंक्शन लिखेंगे, देखो इसमें 3 फंक्शंस जो हैं वो मर्ज हुए हुए थे, तो उन तीनों फंक्शंस को हमने फाइंड आउट कर लिया। और अब जो हमारा फाइनल फंक्शन आएगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था -∞ से 2 तक। फिर उसके बाद हमारा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -5 क्वाड्रेटिक फंक्शन था, एंड इट वॉज गोइंग फ्रॉम 2 to 5, and the last one was square root function x minus 5 plus 4, and it is going from 5 to positive infinity.
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट इन इक्वेशन फॉर द ग्राफ ऑफ द एफ ऑफ एक्स। ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है इनके लिए हमने ग्राफ हमें गिवन है, इनके लिए हमने इक्वेशंस ढूंढनी है। ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशंस फॉर दीज ग्राफ्स। लेट्स चेक देम आउट। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज मूविंग, this one, this is the line. Okay, the second one is constant. Constant तो सबसे आसान होता है. And the third one is a parabola. Okay, so first one की जो इक्वेशन होती है that is y is equal to mx plus c, और we are going to find m y is equal to mx plus c. c जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है, and we really don't know what is the y intercept, but if we can extend this line, अगर हमें y इंटरसेप्ट ना पता हो तो हम कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं. वी विल डू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वी विल गेट द y इंटरसेप्ट. बट अगर हम एक एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पे 7 पे दे रही है, सो y इज इक्वल टू mx प्लस 7 हो गया. बस स्लोप फाइंड करने वाली रह गई है. वी गोइंग टू टेक एनी टू पॉइंट्स. लेट से ये पॉइंट, हम दो पॉइंट, एक ये पॉइंट ले लेते हैं. ये है x, इसके ऊपर है x है -4 और y है -5. तो ये होगा -5 इज इक्वल टू m-4 प्लस 7. -5 -7 इज इक्वल टू -4m. -12 ओवर -4 इज इक्वल टू m. 4 टाइम्स 3 इज 12. ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 7. ये लाइन की इक्वेशन आ गई. उसके बाद कांस्टेंट है पैराबोला की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k. तो h और k क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं, और वो यहाँ पे क्या है? 3 और 2 है. सो y इज इक्वल टू a x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2. अब हम एक पॉइंट ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने ये पॉइंट ले लिया 6 7 और -2. तो इस पॉइंट के थ्रू वी विल फाइंड a, 4 ओके. सो द पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास आई है, वो क्या आई है? यहाँ पे आई एम राइटिंग लाइक ओवर हियर, y इज इक्वल टू, कंप्लीट एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं जगह बना के. यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू 3x प्लस 7, जो कि लाइन की इक्वेशन थी, और डोमेन थी -4 से -1 इंक्लूडेड. फिर कांस्टेंट था 4 के ऊपर, जिसकी डोमेन थी -1 से 3 नॉट इंक्लूडेड. और लास्ट था x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2, और इसकी डोमेन थी 3 to 7 included. Use the graph of f of x to find graph मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स. अच्छा, जो मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स होता है उसमें ये होता है कि जितने भी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो सारी जो कि बिलो ज़ीरो होती हैं, यानी कि ये जो ये वाला एक्सेस है हमारा, इससे नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, और ऊपर वाला सब कुछ वैसे ही रहते हैं. तो पहले हम ऊपर वाला प्लॉट कर लेते हैं. -1 -2 और -2.5 पे यहाँ पे एक पॉइंट है, 2.5 पे एक पॉइंट है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है -4 -1 पे, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. सो दिस इज़ द लाइन. नेक्स्ट जो है उसका पॉइंट आ रहा है 3 के ऊपर, और 3 इंक्लूडेड नहीं है. फिर वो स्टार्ट कर रहा है 1 2 से, इट्स गोइंग till 5 and it's going till 6 7 like this. ये सारा पोर्शन तो ग्राफ का वैसा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये चेंज हो जाएगा. ये -5 की जगह ऊपर जाके +5 के ऊपर जाके लैंड करेगा. और डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से? ये -4 के ऊपर है,
सो इट इज़ एट -4 एंड -5 इट्स गोइंग टू बी -4 एंड +5. सारी y वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती हैं. -4 यही पॉइंट बनेगा. So this will be the modulus function graph. Consider f of x is equal to 5 minus mod of x minus 4. Sketch the graph of f of x. तो अब हमने f of x का ग्राफ बनाना है. तो x -4 अगर हो हमारे पास तो हमें पता है कि हमने पॉजिटिव साइड पे जाके 4 को अप्रोच कर लेना है. और +5 है तो 1 2 3 ये 5 के ऊपर पॉइंट आ जाएगा. फिर ये -1 के हिसाब से स्टेप डाउन हो रहा है. 1 1 इधर, फिर ये 1 1 इधर, ऐसे होगा क्योंकि ये -1 है तो इट्स गोइंग इन द डाउनवर्ड साइड. तो इट्स समथिंग ग्राफ इस तरह से बनेगा. नाउ एफ ऑफ एक्स जो है हमारा फिंस जो है वो 4 के ऊपर आ गई है फिंस. और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x +9 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए, और x +1 -इन्फिनिटी से 4 के लिए, और 4 के ऊपर फिंस आ गई. इसको हम सॉल्व भी करते हैं. 4 -x -4 x -4 4 -6 +4 -6 +8. It should be +8. And the other one will be 4, sorry, it's 5. 5 -x -4 5 -6 +4, so 9 -6, so it's correct. Okay, -6 +9. The other one would be 5 minus, because here we're taking positive one, we're taking negative one. -6 +4 5 +6 -4 x +1. So इस तरह से एक दफ़ा we are going to solve for the positive, one time for the negative, we will get the two equations. Find the inverse of f of x. For x belongs to 4 to positive infinity. So f of x is equal to -x +9. क्योंकि 4 से positive infinity पे function की value क्या है? -x +9. So f of x is equal to -x +9. y is equal to -x +9. Now switch x and y. So क्या आ जाएगा? 4 -infinity to 5. Consider g of x is equal to 3/2x -9. ठीक है. स्केच द ग्राफ. अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 3/2x -9, not 6, because there is, okay, let's suppose it is 6. Okay, 3/2x -6, so it's going to be at 6. Now it's 3 up to 1 2 3 up to 3 up to, so it's going to be 1 2 3 up 1 2. Graph is going to go like this. ठीक है. अच्छा, 3/2 x -6 वी कैन राइट 3/2x -6 3/2x -9 को हम इस तरह लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले 6 पे पॉइंट और 6 पे हमने लगा दिया. अच्छा, अब हमने पीस वाइज फंक्शन पे इसको कैसे लिखना है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/2x +9, जो कि है -इन्फिनिटी इंक्लूडेड से 6 इंक्लूडेड, और 3/2x -9 जो कि है 6 से पॉजिटिव इन्फिनिटी. अंडर टू कंडीशन, व्हाट कंडीशंस ये विल बी इनवर्स ऑफ g of x.
So g of x would be equal to 3 by 2x minus 9 for x is less than equal to 6. So g inverse x is equal to minus 2 by 3x plus 6 for x is greater than equal to 0. सो फाइनली वे डन विद 6.3. मैंने कोशिश की है कि इसमें एक एक स्टेप, एक एक लाइन, एक एक ग्राफ बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको उनको बताऊँ. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा. अच्छे से वीडियो देखिएगा. कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. सो आई विल मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू सो डैट आप लोग बहुत अच्छे से कैलकुलस को सीख सकें. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.